Can anyone tell me the weight of this? क्या कोई बोल सकता है कि ये कितना भारी है? ये पानी का बॉटल कितना भारी है, कोई बोल सकता है? 400 ग्राम. 400 ग्राम. It's about 500. 500. 500. About half a kilo. आधा किलो. Is it heavy? भारी है क्या बहुत? Well, I'm going to tell you something that may surprise you. तो मैं सब लोग को एक आश्चर्य की बात बताना चाहता हूँ. The heaviness of this depends on the time. On the time. तो ये समय के ऊपर निर्भर है कि ये कितना भारी रहेगा. Okay, suppose I was holding this for 1 hour. अगर मैं इसको 1 घंटे तक ऐसे पकड़ के रहूं, What would happen to me? तो क्या होगा मेरे हाथ के साथ? I would get some pain over here. मेरा हाथ दुखने लगेगा. Maybe some pain over here. थोड़ा बहुत यहीं पे दुखने लगेगा. What if I was carrying this all day? अगर मैं पूरा दिन उसको ऐसे पकड़े रहूं, I would have so much pain I may have to go to the hospital. मुझे इतना दर्द हो सकता है कि मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा. So that how much time I carry this makes it heavier. तो ये भारी है कि नहीं, इसके ऊपर निर्भर है कि कितनी देर में इसको पकड़े रखता हूँ. In the same way, उसी तरीके से during the day there are some thoughts that come into our mind. पूरे दिन में ऐसे कई सोच विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं. The thought may be very simple. जो सोच विचार है बहुत ही साधारण रहेगा. But if I keep thinking, if it's a negative thought, if I keep thinking on that for much of the time, और अगर वो कोई गलत सोच विचार है और उसके ऊपर मैं पूरा समय गौर करते रहूंगा, it gets heavier and heavier. वो और भारी होते जाता है. It changes my whole feeling of well-being. पूरा मेरा जो अंदर का आनंद है वो बदल जाता है. It causes me to be discouraged. मैं निराश हो जाता हूँ. Sometimes it causes me to be angry. कभी-कभी मुझे गुस्सा आ जाता है. Sometimes it causes me to be frustrated. मुझे बहुत बार गुस्सा आ जाता है. Whatever it is, it's going to cause some negative effect in my life that day. जो भी हो कुछ ना कुछ उसमें से गलत होएगा मेरे दिन में उस दिन. It could be very simple things. वो कोई छोटी-छोटी बातें रह सकती हैं. A small disagreement with my wife maybe, एक छोटा सा झगड़ा मेरी पत्नी के साथ, or a small matter with my son or daughter, कोई छोटी सी बात मेरे बच्चों के साथ, which can usually easily be fixed. जो आसानी से सॉल्व हो सकता है. But when we think on it and we think of other possibilities and maybe something about the future, लेकिन it जैसे makes हम us लोग angry. लेकिन जैसे हम लोग उसके में सोचते रहते हैं उससे क्या होगा आगे जाके ये वो, तो हम लोग को और चिंता होती है. Brother talked about the story of Mary and Martha. तो ब्रदर ने थोड़ी देर पहले मैरी और मार्था की कहानी सुनाई. Martha was doing a good thing. She was cooking a meal. मार्था अच्छा काम कर रही थी, वो खाना पका रही थी. She was cooking a meal for Jesus. प्रभु यीशु के लिए खाना पका रही थी. But while she was cooking, there was a thought that came to her mind. लेकिन जैसे वो खाना पका रही थी उसके दिमाग में एक सोच आया, एक विचार आया. Why is my sister not helping me? कि मेरी बहन मेरी मदद क्यों नहीं कर रही है. Now Martha was probably a good cook and she could probably do it herself. अभी मार्था उसके पास क्षमता रहेगा कि वो खुद ही कर सकती थी सारे काम. But she kept thinking, my sister has such an easy life. लेकिन वो पूरा टाइम यही सोच रही थी कि मेरी बहन तो कुछ काम नहीं कर रही, आराम कर रही है. So that thought eventually caused her to be angry with the situation. तो वो सोच के आखिर में उसको गुस्सा आ गया. And she presented Jesus with an angry question, which Jesus then understood that it was her heart that was not right. तो उन्होंने फिर जाके प्रभु यीशु से गुस्से में सवाल पूछा. फिर प्रभु यीशु ने उनको समझाया कि तुम्हारे मन में कमी है. So let's look at Proverbs chapter 27. नीति वचन 27 में जाएंगे. नीति वचन 27. Proverbs 27 verse 3. वाक्य 3. नीति वचन 27 वाक्य 3. पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूर्ख का क्रोध उन दोनों से भी भारी है. We talked about this a few weeks ago about how anger is such a heavy thing. कुछ हफ्ते पहले हमने ये चीज पे गौर किया था कि कैसे गुस्सा इतना बड़ा बोझ है. But it usually doesn't start out heavy. It starts out with some small thing that happens. वो शुरुआत से भारी नहीं रहता, छोटी-छोटी चीजों से शुरुआत होती है उसकी. As we think about the situation more and more, लेकिन जैसे हम लोग उसके ऊपर सोचते जाते हैं, it becomes heavier and heavier. वो भारी होते जाता है.
Now read number 4, verse 4. वाक्य 4 पढ़ेंगे। क्रोध तो पूर और प्रकोप धार के समान होता है, पर जब को जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। So the next verse is talking about jealousy. तो अगले वाक्य में ईर्ष्या के ऊपर लिखा है, जलन के ऊपर लिखा है। So sometimes we look at our neighbor, or we look at someone who's having maybe a good job, a good car. तो हम लोग अपने आजू बाजू के लोगों को देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, और उनके पास हम लोग से अच्छा काम है, अच्छा गाड़ी है। And the devil puts a small thought in our mind. और शैतान एक छोटा सा विचार हम लोग के दिमाग में डालता है, You know, I should have that house, or I should have that car. कि मेरे पास ये गाड़ी या घर होना चाहिए। And then we start thinking on that over and over again, और फिर हम लोग उसी के ऊपर सोचते रहते हैं पूरा टाइम, and it destroys our happiness. और पूरा हम लोग का आनंद हम लोग खो जाते हैं। But when that thought comes in, if we just throw it away, लेकिन अगर जब वो विचार हम लोग के दिमाग में आते हैं, हम लोग उसी समय उसे निकाल दें, then we don't have to be burdened by it. तो फिर उसका बोझ हम लोग को सहने की जरूरत नहीं। So it's not usually the thought that's harmful, it's the dwelling on the thought that is harmful. तो जरूरी नहीं कि वो विचार ही बहुत ज्यादा नाश लेके आता है, लेकिन जब हम लोग उसके ऊपर सोचते हैं, गौर करते हैं, तभी नाश आता है हमारे जीवन में। The scriptures tell us that we bring every thought to the captivity of Christ. इसलिए बाइबल में लिखा है कि हर एक सोच विचार को प्रभु यीशु के चरणों में लाओ। So as the thought comes in our mind, we present it to Jesus Christ. तो जैसे जैसे विचार अलग अलग आते हैं, हम लोग को सब प्रभु यीशु को समर्पण करना है। We ask him, is this something that I should be carrying throughout the day? हम लोग उससे पूछना है कि क्या ये विचार के ऊपर मैं पूरे दिन गौर करूं? And if he says no, then we need to get rid of it quickly. और अगर वो कहता है कि नहीं, तो हमें उसे फेंक देना है। Now let's look at Proverbs chapter 12, नीति वचन 12 देखेंगे। नीति वचन 12 verse 16. वाक्य 16। नीति वचन 12 वाक्य 16। मूढ़ की रीस उस दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छुपा रखता है। So what it really means is that in the wise man, when someone insults him, he quickly hides it up. तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जब भी उसका अपमान होता है, वो उसे छुपा देता है। A lot of us, when we are insulted or someone says something bad to us, we want to fight back, or maybe we keep silent, but we think about that thing all day. लेकिन जब भी कोई हमारा अपमान करता है, तो या तो हम लोग उससे झगड़ा कर देते हैं, या तो चुप बैठते हैं, लेकिन मन ही मन उसके ऊपर ही सोचते रहते हैं। And it destroys our happiness, our joy for the whole day. और पूरा दिन का आनंद और खुशी चला जाता है उसी के पीछे। But the scripture says that the wise man just takes that insult and hides it away. लेकिन बाइबल कहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो अपमान सह लेता है और उसको छुपा देता है। But you don't hide it by burying it inside you. लेकिन हम लोग उसको कैसे छुपाते हैं? मन में अंदर रख के, उसके ऊपर सोच के नहीं। But you hide it by presenting it to Jesus. हम लोग उसे ऐसे छुपाते हैं कि हम लोग उसको प्रभु यीशु को दे देते हैं। He can be that hiding place for these thoughts of ours. तो वो ऐसा व्यक्ति है जो ये सारे विचार ले सकता है। Because he said, give all your burdens to me क्योंकि वो कहता है कि तो अपने सारे बोझ मुझे दो, and take my burden upon you. और जो मेरा जो बोझ है वो तुम ले लो। So he said, take my yoke upon you because my yoke is light. तो वो कहता है कि मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरे बोझ में तुम्हें जीवन मिलेगा। So the devil puts thoughts in our minds throughout the day. तो पूरे दिन में शैतान हमारे दिमाग में विचार डालते रहता है अलग अलग। Or there's situations throughout the day that can make us upset. अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा हम लोग निराश हो सकते हैं। But we have to recognize that the longer we think about those little things, लेकिन हमें याद रखना है कि जितना हम लोग ये चीजों के ऊपर गौर करते जाएंगे, it's going to destroy our fellowship with God. उतना हम लोग का प्रभु के साथ संगति कम होते जाएगा। It's going to destroy our own health. हम लोग का सेहत के ऊपर भी असर पड़ेगा। Look at Philippians chapter 4. फिलिपियों चैप्टर 4, फिलिपियों चैप्टर 4 verses 8 and 9. वाक्य 8 और 9। फिलिपियों चैप्टर 4 वाक्य 8 और 9। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं,